Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the current energy for the sign of uh, Cancer from uh, from 16th to 30th of October. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. And please check your sun, moon, rising, and Venus if you know astrology. And also remember that energies can always shift, they can always change, they can be your partner's energy also, and so vice versa. So this is for the sign of Cancer from 16th to 30th of October. Now, in this I'm going to tell you about your situation, current situation, near future, your recent past, your challenge, focus, and the overall energy, and give you some advice. So now let's see what's there for the Cancer people. Let's see what's there for the Cancer people. This is your current, this is your near future, this is your recent past, sorry, then this is your challenge, this is your focus, and this is your overall energy. Bottom of the deck, you have the Hermit in the reverse. Okay, Cancers, your current situation is Four of Pentacles. So I feel here, Cancer people, that you are manifesting something. Overall energies of manifestation. You want to create something. You want to create, or maybe you want to create and make efforts and change your destiny. There is some particular goal. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गोल है या कोई ऐसी मंजिल है जो आप पाना चाहते हैं और आप उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं. आप अपने सारे एफर्ट्स, अपना सारा टैलेंट, सारा स्किल उस पर लगा रहे हैं. और दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी. और आपको कुछ आपका चैलेंज है बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट समथिंग. तो आपका चैलेंज है, यू आर लर्निंग समथिंग. आप कुछ हायर स्टडीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं. और आप काफ़ी फोकस्ड हैं. सो आपकी पूरी रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर फोकस. आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं. सी एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप अपने इस गोल को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस में हैं जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर करंट सिचुएशन, विच इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैंसर पीपल? Okay, 4 of Pentacles is clarified by the 9 of Wands in the reverse, by the Page of Swords in the reverse, and by the Death in the reverse. तो कैंसर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है एंड या इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग. और आप उस चीज़ को फाइट आप नहीं करना चाहते हैं बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड. आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन आप स्टिल उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं. बॉटम ऑफ द डेक इज़ यू आर वांटिंग टू हैव अ ब्रांड न्यू बिगनिंग. एक आप नई शुरुआत करना चाहते हैं. यू आर बीइंग वेरी पेशेंट. और नई शुरुआत, दिस रिलेशनशिप वॉज वेरी वेरी टॉक्सिक. ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक थी आपके लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग दैट एक सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में एंड हो रही है और आप आप उसी को लेकर के उस पर ऑब्सेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग in the recent past. You have the 9 of swords in the reverse. आप काफ़ी टेंशन, स्ट्रेस में थे, लेकिन आपने उससे निकलने की कोशिश करी, कैंसर पीपल. सो लेट्स क्लैरिफाई द 9 of swords in the reverse. All right, 9 of swords is clarified by the moon, by the 6 of wands in the reverse, and by the 10 of pentacles. Yeah. तो रीसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे. आप अपनी स्टेबिलिटी, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को लेके बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस थे मे बी, एंड आप इसमें यू गॉट लॉट ऑफ सक्सेस, विक्ट्री, अटेंशन, लेकिन फिर भी आप इस सक्सेस और विक्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। आप कहीं ना कहीं डरे हुए थे मे बी कि आपको ये खुशी, ये सक्सेस, ये विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वेदर इट इज़ लॉन्ग स्टेबल और नॉट। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे रिसेंट पास्ट में, एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन लव. So I don't think so this is a love situation for you with the Ace of Cups in the reverse. Now let's clarify the King of Wands in the near future. Okay. King of Wands is clarified by the Five of Wands in the reverse, by the Knight of Swords in reverse, and the Magician. Magician is also your overall energy. So see how beautiful tarot is. You've got two, it is confirmed Magician. Now आप near future में, yeah, you are very very passionate, King of Wands. You are very very passionate in the near future, और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप यू नो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. यू वांट टू बी किंग ऑफ वॉन्ड्स. आप बहुत तेज़ी से अपने गोल की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और यू नो आप किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट या डाउट्स में नहीं पड़ना चाहते हैं. आपके अंदर यू नो कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं, आप बहुत नेगेटिव सोचना नहीं चाहते हैं, या विद द एस ऑफ सोर्ट्स आपको क्लैरिटी है एग्जैक्टली कि आप क्या चाहते हैं या किस ओर बढ़ रहे हैं. तो आप बहुत ही तेज़ी से इस ओर अपने अपने गोल्स, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप पूरा स्किल यूज़ कर रहे हैं टू बी सक्सेसफुल. नाउ लेट्स सी योर चैलेंज. योर चैलेंज इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स. आपका चैलेंज है कि आप इसमें नई शुरुआत कैसे करें. यू आर वॉन्टिंग टू स्टार्ट समथिंग. यू आर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई यू नो स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ योर चैलेंज. Now page of pentacles is clarified by the hanged man, by the six of pentacles, and by the nine of cups in the reverse. So you know कैंसर, आप जो है आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप स्टक हैं. आप स्टक हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा डिलेज आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, एंड यू आर वेटिंग, यू आर इन द वेटिंग मोड. और यही आपके लिए चैलेंज है, बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. आप कुछ विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, और इसीलिए आप इम्बैलेंस फील कर रहे हैं इन दिस सिचुएशन. यही आपका चैलेंज है. ना इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप यू नो ये रिलेशनशिप शायद आप स्टार्ट करना चाहते हैं नए सिरे से. यू वांट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बट इसमें देयर इज़ लॉट ऑफ डिलेज इन दिस सिचुएशन हियर. और एंड वाई दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, बिकॉज देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक. एक आदमी ज़्यादा दे रहा है, दूसरा आदमी कम एफर्ट्स कर रहा है, एक या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, दूसरा आदमी कम कर रहा है. सो ओवरऑल योर एनर्जी इज़ योर वेटिंग. आपने अपना पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदल दिया. यू आर वेटिंग एंड योर चैलेंज इज़ कि आपको समय पे छोड़ देना चाहिए. यू शुड लीव इट एंड यू शुड मूव फॉरवर्ड. इंस्टेड ऑफ बीइंग अनहैप्पी, यू शुड लीव इट. Now let's clarify your focus. Your focus is the King of Swords upright. This is your focus. आप बहुत ही ज़्यादा cool detached हैं, and आपका focus है cool detached रहना, and you want to communicate. आप communicate भी करना चाहते हैं, but आप unemotionally, आप straight forward बात करना चाहते हैं, या फिर आप you are cutting some situation out in your life. This is your focus. So let's clarify the King of Swords upright. Please clarify the King of Swords upright for Cancer. Okay, King of Swords is clarified by the Knight of Wands in the reverse, by the Ten of Swords, and by the Hermit in the reverse. So yeah, exactly. There is some situation which has ended in your life. आपका focus इस ending पर है. It has been a very bad ending. और ये 10 of Swords का मतलब है कि ये एक situation end हो चुकी है, और आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं. You're cutting it out. Why? Because you feel कि
आपने काफ़ी इसके बारे में सोच विचार किया और ये पाया कि ये सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं है, और ये यू आर डीलिंग विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं हु इज़ वेरी इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, अनस्टेबल, और देर इज़ वन सिचुएशन विच इज़ ऑलरेडी एंडिंग इन योर लाइफ and you are just cutting it off. This is what it is showing me in the present moment. Yeah, because it creates a lot of unhappiness for you. Your wants, yeah, you have already decided to heal yourself. Now let's clarify the magician. Overall energy is the magician. So what is this overall energy? Please clarify the magician for Cancer people. आपकी ओवरऑल एनर्जी इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स. सो यू आर मैनिफेस्टिंग योर स्टेबिलिटी. आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं. आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, इमोशनल, फिज़िकल, किसी भी प्रकार का. तो आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं. आप एक हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं एंड यू वांट टू फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी. तो आप अपनी पूरी स्किल, अपना पूरा टैलेंट, पूरी मेहनत इसमें लगा रहे हैं सो दैट यू बिकम यू बिकम स्टेबल. स्टेबल का मतलब है कि मनी, योर फैमिली इशूज़, एनीथिंग, यू वांट टू सेटल ऑल दैट. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर कैंसर? What is the advice for Cancer, my lofty? Okay. Your advice is the 4 of Wands in the reverse, the 7 of Pentacles, upright, and the World. तो कैंसर, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको ये समझना चाहिए कि एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो चुकी है. 1 चैप्टर इज़ क्लोजिंग. जैसा कि आपको डेथ कार्ड भी आ चुका है, इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ क्लोजर. आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुका है, दिस इज़ ऑल्सो एन एंडिंग. तो आपकी लाइफ में एक सिचुएशन पूरी तरीके से एंड हो चुकी है और आपको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. इसको बार बार आप एनालाइज ना करें, इवैल्यूएट ना करें, और बार बार सोच विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी एंडेड इन योर लाइफ. 1 चैप्टर इज़ क्लोज, द अदर इज़ नाउ ओपनिंग, और आप एक नए पोर्टल में जा रहे हैं एंड यू आर सिंगल. यू सी, दिस वुमन इज़ सिंगल एंड शी इज़ फ्री. सो आप सिंगल हैं, आप फ्री हैं, और यू शुड ट्राई टू हील योर सेल्फ. अपने फ्यूचर की ओर देखें और बार बार इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना करें कि बार बार इस सिचुएशन को आप री इवैल्यूएट करते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाई इट इज़ एंडेड, व्हाट टू डू, वेदर टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप सीधे से सिचुएशन को एंड करें. So this is what the guidance is for you. I hope you got something from the reading. If you liked it, please hit the like button, subscribe, and see you next time. Bye bye.